مسلم لیگ نون کی قیادت کا لندن میں اجلاس، اہم امور پر مشاورت، سیاسی اور اقتصادی صورتحال پر غور، حکمت عملی اور فیصلوں کا اعلان اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ہوگا۔ پی ٹی آئی لانگ مارچ روکنا ہے یا نہیں، فیصلہ اتحادی حکومت نے کرنا ہے۔ عمران خان نے قوم کو تقسیم کیا اور ملک تباہی کے دھانے پر پہنچا دیا۔ محمد نواز شریف پارٹی قائد ہیں اور ان سے اہم امور پر مشاورت ہوتی ہے۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ۔ عمران خان عوام کو بے وقوف مت سمجھیں اور اپنی 4 سال کی بدترین کارکردگی کا حساب دیں۔ وہ ملک کو اس حال تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ سوال بھی ان سے ہوگا اور جواب بھی انہیں دینا پڑے گا۔ نوٹ اور مراد دیکھ کر ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے۔ مریم نواز کا ٹویٹ۔ عمران حکومت کے آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدے سے نکلیں گے تو ڈالر نیچے آئے گا۔ ڈالر کی پرواز اور مہنگائی میں اضافہ پی ٹی آئی حکومت کے آئی ایم ایف سے معاہدے اور پھر اس کی خلاف ورزی کے اثرات ہیں۔ پیٹرول پر سبسڈی نے پاکستان کی معاشی صورتحال کو شدید مالی دباؤ سے دوچار کیا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ کارٹلز اور عمران مافیا حکومت کی وجہ سے 4 سال معاشی دہشت گردی کی گئی۔ سیاسی مقاصد کے لیے معیشت اور عوام کو داؤ پر لگانا غداری ہوتی ہے۔ عمران خان معاشی تباہی کا حساب دیں۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر مؤخر۔ 16 مئی کو ہونے والا اجلاس اب 30 مئی کو ہوگا۔ 28 اپریل کو طلب کیا گیا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی صدارت میں پارلیمانی گروپ کا اجلاس، مسلم لیگ نون اور اتحادی اراکین اسمبلی کی شرکت۔ عوامی مسائل کا حل مشترکہ ذمہ داری ہے۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے خصوصی اقدام کا جلد اعلان کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں ایپیکس کمیٹی کا اجلاس، امن و امان کی صورتحال کا جائزہ، کراچی میں جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات پر بریفنگ۔ ریاست مخالف سرگرمیوں کو ہرگز برداشت نہیں کریں گے، سید مراد علی شاہ۔ متحدہ عرب امارات کے صدر اور ابوظہبی کے حکمران شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 74 برس تھی۔ یو اے ای میں 40 دن کے سوگ کا اعلان، 3 روزہ عام تعطیل ہوگی۔ پاکستان میں بھی 3 روزہ سرکاری سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ وزیر اعظم، صدر مملکت اور آرمی چیف کا شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے مولانا فضل الرحمان کی ملاقات، ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جمہوریت کا تسلسل اور آئین کی بالادستی ناگزیر قرار۔ ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس سے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقیقت نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف مقدمات کا دفاع کریں گے اور میرٹ پر سرخرو ہوں گے۔ وزیر قانون عاصم نذیر تارڑ۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرانے کا عمل مکمل، بینکس کے ذریعے 57,593 درخواستیں موصول، قرآن دازی 15 مئی کو ہوگی۔ درخواست گزاروں کو تصدیقی میسیجز بھیجے جا چکے ہیں، وزارت مذہبی امور۔ ملک کے میدانی علاقوں میں شدید گرمی، جیکب آباد میں پارہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ سبی، دادو، موہنجودڑو، لاڑکانہ اور خیرپور میں 49 ڈگری سینٹی گریڈ، شہید بے نظیر آباد، مٹھی، سکھر، روہڑی، پڈیدن اور ڈی جی خان میں 48 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ملک کے وسطی اور جنوبی میدانی اضلاع میں گرد آلود ہوائیں اور جھکڑ چلنے کا امکان۔ بالائے خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار اور کشمیر میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع۔ راولپنڈی کے علاقے کوٹلی ستیاں کے جنگلات میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 6 کلومیٹر کے علاقے میں شدید نقصان، فائر فائٹرز نے 20 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد صورتحال پر قابو پایا۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی، ضلع بانڈی پورہ میں مزید 2 نوجوان شہید۔ حق خود ارادیت کی تحریک کی حمایت کے الزام میں ملازمتوں سے برطرفی کا سلسلہ جاری، کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر سمیت کئی ملازمین کو برخاست کر دیا گیا۔
G7 वज़ीर खारजा का इजलास, यूक्रेनी वज़ीर खारजा की खुसूसी दावत पर शिरकत। यूक्रेन जंग आलमी बहरान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यूक्रेन की बंदरगाहों पर मौजूद 25 मिलियन टन अनाज की तरसील रुकी हुई है। जर्मन वज़ीर खारजा। साबिक आलमी चैंपियन बरतानवी बॉक्सर आमिर खान का रिटायरमेंट का ऐलान। पाकिस्तानी नयाद 35 साल आमिर खान ने बॉक्सिंग करियर में 34 फाइट्स जीती, 6 में नाकाम रहे। करियर पर फख्र है, मद्दाहों, दोस्तों और फैमिली का शुक्रगुजार हूं, आमिर खान। और वियतनाम में साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। 11 ममालिक के 5000 से ज्यादा एथलीट्स, 40 मुख्तलिफ इवेंट्स में मद्दे मुकाबले 23 मई तक हनोई और मुहलिका शहरों में होंगे। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। दुनिया की कोई कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना मुआशरे की तामीर और तरक्की में हिस्सा न लें। औरतों को घर की 4 दीवारी में बंद करने वाले इंसानियत के मुजरिम हैं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको बताएंगे मुस्लिम लीग नून की क़यादत का अहम इजलास लंदन में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ सियासी और माशी उमूर ज़ेर गौर आए। पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की। शरका ने आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तमाम उमूर पर इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर चलेंगे। 3 दिन हमारी जो डिलिब्रेशंस हुई हैं, जिसमें तकरीबन जितनी भी पाकिस्तान में मौजूद मुआहिदीन थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मियां साहब के कहने के ऊपर जो है यहाँ पे हाजिर हुए थे और वो डिस्कशन जो हुई हैं वो मेनली उनका फोकस जो था वो पाकिस्तान की जो इस वक्त माशी हालात हैं उन पे रहा, बल्कि तकरीबन 100% जो है जो उसका फोकस था वो माशी हालात पे रहा। और उसके साथ साथ जब माशी हालात जो ज़ेर बहस आए तो इमरान खान जो पिछले 3.5-4 साल में माशी तबाही और करप्शन का एक बाजार जो रियासत की सरपरस्ती में जो बरपा रहा वो भी ज़ेर बहस आया। और ये बेसिकली ये जो बैगेज है इस वक्त जो हमारे ज़िम्मे पड़ा हुआ है, ये उन्हीं 3.5 साल और 3.25 साल का बैगेज है। तो ये अब ये सारे के सारे जो आज डिलिब्रेशन जो आज कंक्लूड हुई हैं, ये डिलिब्रेशन हम इंशाल्लाह ताला लेके तमाम स्टेक होल्डर्स जो हमारे अलाइज हैं उनके सामने हम रखेंगे और इंशाल्लाह ताला बाई मंडे या आज फ्राइडे हो गई है, सोमवार तक जो है इसका कोई ना कोई फैसला हम कोशिश करेंगे इतवार को फैसला है, ताकि जो गुमगू की माशी कैफियत है वो ख़त्म हो और मार्केट्स जो हैं उनमें कुछ स्टेबिलिटी आए और जो पिछले 3.5 साल की तबाही जो है
उसका कोई सदेबाब किया जा सके, उसके जो असरात हैं, जो टॉक्सिक असरात हैं, उसके जहरीले असरात जो हैं, उन असरात को जो है इसी तरह जो है उनका जो है मदावा किया जा सके। और इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेट जो सॉवरन है वो पाकिस्तान की आवाम है, उन्होंने फैसले करने हैं। हम अपना केस जो है हम और हमारे कोलिशन पार्टनर्स जो है पाकिस्तान की आवाम के आगे रखेंगे और जो भी फैसला करेंगे तो पाकिस्तान की आवाम जो है अगले 48 घंटे में इंशाअल्लाह ताला जो है उनको हम एक माद में ले लेंगे। पाकिस्तान की इक्तसादियात पे बात हुई है और ये हमारी जिम्मेदारी थी वज़ीर आज़म साहब की भी और हम सब की भी जो फेडरल कैबिनेट में उनके साथ हैं कि हम अपने कायद को, जिन्हें झूठे मुकदमात में मुलव्वस करके हमसे दूर किया गया है, जिन्हें गलत तौर पे कैद में डाला गया है, हम उनके पास आते और आके उनसे रहनुमाई लेते। हमारे सेशन बड़े लेंथी सेशन थे और हमने बड़ी तफसील के साथ जो घाव लगाया है, जो जख्म लगाया है इमरान खान की हुकूमत ने पाकिस्तानियों को, जो माशी तबाही की है, उस पर बात की है, उसके सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए हैं। इसके साथ साथ हमने इस बात पर भी बात की है कि किस अंदाज में मुल्क और कौम को तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो मंत्रा बनाने की इमरान कोशिश कर रहा है, पहले मजहब कार्ड से खेलता रहा, फिर करप्शन कार्ड से खेलता रहा, वो दोनों पिट गए तो गद्दारी कार्ड से उसने खेलना शुरू कर दिया है। ये दुरुस्त नहीं है। और जो अभी एक सवाल था कि एक कॉर्नर नजर आ रहे हैं, आपको बहुत जल्द हम फॉरवर्ड पोजीशन में खेलते नजर आएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मोहम्मद नवाज शरीफ पार्टी कायद हैं और उनसे अहम अमूर पर मुशावरत होती रहती है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि पीटीआई लॉन्ग मार्च रोकना है या नहीं, फैसला इत्तेहादी हुकूमत ने करना है। वजीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान ने कौम को तकसीम किया और मुल्क तबाही के धाने पर पहुंचा दिया। गवर्नमेंट का फैसला है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है और जो कैबिनेट कंसेंसस से डिसीजन करेगी, अगर ये फैसला हुआ कि इसको आने देना है तो ठीक है, कोई ले आएगा 10-15 हज़ार आदमी। और अगर ये फैसला हुआ कि ये इसको नहीं आने देना तो ये बिल्कुल ये 20 बंदे भी नहीं ला सके। शेख रशीद भी नहीं आएगा, वो भी लाल हवेली बैठा रहेगा। ये कौम को तकसीम कर रहा है, नौजवानों को गुमराह कर रहा है, तो ये किस तरफ कौम को लेके जा रहा है। तो ये सब के लिए, ये सिर्फ PMLN के लिए नहीं या इत्तेहादी हुकूमत के लिए नहीं, ये पूरी कौम के लिए लम्हा फिक्री है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि एक दिन गाली, अगले दिन कवाली, बॉस और चपरासी की सियासी जिंदगी की कुल कहानी है। अब इलेक्शन ही होंगे, इसीलिए ये परेशान है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की पर झाड़ू फेरने वाले अब जमहूरी निजाम पर झाड़ू फेरना चाहते थे। 4 साल में कमर तोड़ महंगाई करने वाले अब सबसे ऊंची आवाज में महंगाई का बैन डाल रहे हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि ये वो मनहूस किरदार हैं जो डॉलर की कीमत बढ़ने पर इसलिए खुश होते हैं कि इन्हें सियासी फायदे की खैरात मिल जाए। उनको ये नदामत और शर्मिंदगी नहीं होती कि 4 साल की उनकी लूट मार और नाअहली ने आवाम को नुकसान पहुंचाया। इखलाकी दिवालियापन का शिकार टोले ने मुल्क को मुआशी दिवालियापन की नहज पर पहुंचा दिया। नाज़रीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि लंदन में ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर रेलवेज ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इमरान खान साजिशी आदमी है, इस शख्स ने हमेशा एम्पायर से मिलकर खेला है। ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि 2014 में मुंतखब हुकूमत के खिलाफ साजिश की गई। बुनियादी तौर पर इमरान खान एक साजिशी आदमी है, सर से पांव तक साजिश में लुथड़ा हुआ आदमी है ये, और ये शख्स हमेशा एम्पायर से मिलकर खेलता है। 2014 के धरने में ये किस एम्पायर को आवाज़ें देता था जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी वो इन प्लेस थी। वो दिन गया, आज का दिन आ गया, ये शख्स ये बाज नहीं आया। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या हो सकती है? मैंने बहुत बड़े बड़े मुनाफिक देखे हैं, इमरान से बड़ा मुनाफिक मैंने नहीं देखा पाकिस्तानी सियासत। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान अवाम को बेवकूफ मत समझें और अपनी 4 साल की बदतरीन कारकर्दगी का हिसाब दें। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और मईशत को इस हाल को पहुंचाने के जिम्मेदार इमरान खान हैं, ये सब उनका किया धरा है। सवाल भी इमरान खान से होगा और जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा। मरियम नवाज ने कहा कि झूठे और मुल्क का खून चूसने वाले लोग असेंबलियों से इस्तीफे ऐसे देकर गए हैं जैसे कभी वापस नहीं आएंगे, मगर उनके तमाम उसूल पैसा देकर हवा हो जाते हैं। नोट और मुराद देखकर इमरान और PTI की राल टपकने लगती है। क्या मुल्क पर बात करने या आईन तोड़ने की तनख्वाहें ले रहे हैं?
वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि इमरान खान हुकूमत के IMF से किए गए मुआहदे से निकलेंगे तो डॉलर नीचे आएगा। डॉलर की परवास और महंगाई में इजाफा इमरान खान के IMF से मुआहदे और फिर उसकी खिलाफ वर्जी के असरात हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत मईशत को जिस नहज पर छोड़कर गई है उसकी बहाली के लिए अनथक मेहनत की जरूरत है। वजीर खजाना ने कहा कि पेट्रोल पर सब्सिडी ने पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को शदीद माली दबाव से दो चार किया है। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत खरीद और पाकिस्तान में कीमत फरोख्त के दरमियान फर्क है। हुकूमत को अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। रवा माह तकरीबन 120 अरब रुपए के नुकसान का तखमीना था, जो सिविलियन हुकूमत चलाने के खर्च से 3 गुना ज्यादा है। इतना बड़ा खसारा कोई भी हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसी वजह से तमाम मार्केट्स में हलचल और महंगाई फैल रही है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि हुकूमत के पास पैसे ना हो और फिर वो सब्सिडी दे तो मजीद कर्ज लेना पड़ता है। इस वजह से शरह सूद में इजाफे के साथ रुपए पर दबाव बढ़ रहा है। वजीर खजाना ने कहा कि इमरान खान ने 3.5 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज दिया, जो मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा है। इस कर्ज की वजह से पाकिस्तान की हुकूमत शदीद माशी दबाव का शिकार हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने IMF से किए गए तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसे हमें दोबारा बहाल करना पड़ा। PTI हुकूमत की 4 साल की लूटमार, नालायकी, नाअहली, कार्टल्स और माफिया की हुक्मरानी की वजह से महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। इमरान खान को मुल्क व कौम के खिलाफ अपने जराइम का जवाब देना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मईशत की तबाही और डॉलर की कदर में इजाफे का मुजरिम इमरान खान को करार दिया है। फवाद चौधरी के बयान पर रद्दमल देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को गंभीर मसाइल की दलदल में इमरान खान ने धंसाया है। PTI हुकूमत के IMF से मुआहदे की सजा पाकिस्तानी अवाम को महंगाई की सूरत में मिल रही है। वजीर इत्तलात ने कहा कि मुल्क में 4 साल नालायक, नाअहल, कार्टल्स और इमरान माफिया हुकूमत की वजह से मौशी दहशतगर्दी की गई। पेट्रोलियम मसनूआत की मद में इमरान खान ने अपनी नाकाम सियासत को बचाने के लिए मुल्क और कौम को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अवाम दुश्मन मौशी जराइम को छुपाने के लिए इमरान खान कंटेनर्स पर चढ़े हैं। सियासी मकासद के लिए मईशत और अवाम को दाव पर लगाना गद्दारी होती है। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि इमरान खान महंगाई का शोर मचाने की जवाब उनका जवाब दें और मौशी तबाही का हिसाब दें। नाज़रीन, पासपोर्ट एक्ट 1974 के तहत एक से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे, ताहम इस फैसले का इत्तलाक बैरून मुल्क शहरियत या गैर मुल्की पासपोर्ट पर नहीं होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने मीडिया में नशर होने वाली एक खबर की वजाहत करते हुए कहा कि वफाकी काबीना के 10 मई के इजलास में पासपोर्ट एक्ट 1974 के तहत एक से ज़ायद पाकिस्तानी पासपोर्ट मनसूख करने की मंजूरी दी गई। गैर मुल्की पासपोर्ट मनसूख करने की खबर गलत रिपोर्ट हुई। बैक ताहम एक वक्त 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट रखना जुर्म है। 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट मंसूख करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की गई है। और नाज़रीन, ज़र मुबादला के हवाले से अच्छी खबर। गुज़श्ता माह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से एक माह के दौरान रिकॉर्ड 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स वतन भेजे गए। इससे पहले रवा माली साल के दौरान हर माह तकरीबन 2 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र वतन भिजवाई जाती रहीं। ताहम अप्रैल में तरसीलात ज़र गुज़श्ता साल अप्रैल के मुकाबले में 12% से ज़ायद रहीं। स्टेट बैंक के मुताबिक रवा माली साल के पहले 10 माह में अब तक बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से मजमूई तौर पर 26 अरब 10 करोड़ डॉलर का कीमती ज़र मुबादला वतन भिजवाया जा चुका है, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 7.6% ज्यादा है। सबसे ज्यादा रकूम सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया और अमरीका में बसने वाले पाकिस्तानियों की जानिब से मुल्क भिजवाई गई है। मौशी माहिरीन कहते हैं कि तरसीलात ज़र में इजाफा मुल्क की मईशत के लिए एक अच्छी खबर है, जिससे डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम होगा। पंजाब असेंबली की बात करें तो पंजाब असेंबली के इजलास की तारीख एक मरतबा फिर तब्दील कर दी गई है। 16 मई को होने वाला इजलास अब 30 मई को होगा। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने खुसूसी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इजलास की तारीख तब्दील की है। इससे कबल 28 अप्रैल को तलब किया जाने वाला इजलास भी मुकर्रर वक्त से कुछ देर पहले मुलतवी कर दिया गया था। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ ने 6 अप्रैल को डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवाई थी, जिस पर कार्रवाई 16 मई के एजेंडे में मुतवक्को थी। ज़राए के मुताबिक इस तहरीक की कामयाबी के लिए मतलूबा तादाद ना होने की वजह से सूबाई असम्बली का इजलास मुलतवी किया जा रहा है।
नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी ग्रुप का इजलास हुआ, जिसमें मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली और इत्तेहादियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। हमजा शहबाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए खुसूसी इक़दामात का बहुत जल्द ऐलान करेगी। उन्होंने अवामी नुमाइंदों पर जोर दिया कि वो महंगाई के खिलाफ मुहिम में अपना हिस्सा डालें और अवाम को रिलीफ की फराहमी में अपना किरदार अदा करें। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने हिदायत की है कि गिरां फरोशों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। उन्होंने अवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ अज़ला के अचानक दौरों का फैसला किया है। तफसील बता रहे हैं ताहिर कलासरा। घी, आटे, चीनी, चिकन और दीगर इशाए खुर्दोनोश की कीमतें कम करने के लिए जामे एक्शन प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला किया गया है। लाहौर में महंगाई के हवाले से आला सतही इजलास के दौरान वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद हमजा शहबाज ने ज़ख़ीरा अंदाज़ों पर कड़ी नज़र रखने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी को सूबा भर के दौरे करने की भी हिदायत की और कहा कि वो खुद भी मुख्तलिफ शहरों का अचानक दौरा करेंगे। मोहम्मद हमजा शहबाज ने वज़ीर आला ऑफिस में चीफ मिनिस्टर प्राइस कंट्रोल सेल कायम करने का भी ऐलान किया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि महंगाई के सतह आम आदमी के लिए आसानियां पैदा करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। नारोवाल के मुख्तलिफ इलाकों में गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ इंतजामिया का ऑपरेशन, शकरगढ़, नूरकोट, धारेवाल और मुख्तलिफ इलाकों में इंतजामिया की तरफ से कार्रवाई के दौरान 7,800 बोरियां ज़ख़ीरा की गई गंदम बरामद की गई। ज़ख़ीरा शुदा गंदम को सरकारी गोदामों में मुंतकिल कर दिया गया है। गंदम की मालियत तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद है। इंतजामिया ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि किसी सूरत रियासत मुखालिफ सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अमन व अमान की सूरत हाल, कराची में जराइम और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स, गैर कानूनी नकल मकानी समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। शुरका ने दहशत गर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। दौरान इजलास सेक्रेटरी दाखिला ने गुज़श्ता एपेक्स कमेटी इजलास के फैसलों से मुतालिक ब्रीफिंग दी और बताया कि दहशत गर्दी के खिलाफ मुखालिफ बयानियां कायम करने के लिए कमेटी बनाई गई थी। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि चीनी बाशिंदों की सहूलत के लिए बख्तावर एयरपोर्ट को बहाल करने पर सिविल एविएशन अथॉरिटी से बातचीत जारी है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन में पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ दायर रेफरेंस की समाअत पीर तक मुलतवी हो गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को दस्तखत शुदा जवाब और इमरान खान का बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत की है। तहरीक इंसाफ के वकला ने दलाइल में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पार्टी की वाज़े हिदायत के बरक्स 25 अरकान ने वज़ीर आला के इंतखाब में वोट डाला, जो कि संगीन जुर्म भी है, और इन अरकान ने यह बात खुद भी तस्लीम की है। उनका कहना था कि अदालतें पार्टी से इनहराफ को कैंसर करार दे चुकी हैं। और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि हायर एजुकेशन कमीशन एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम मुतारिफ कराने के लिए जामियात की हौसला अफजाई करे। ईवान सदर में गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी से मुतालिक ब्रीफिंग इजलास की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि मार्केट की जरूरियात पूरी करने के लिए जामियात और सनती शोबे के दरमियान ताउन बढ़ाने की जरूरत है। डायरेक्टर गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट ने सदर मुमलिकत को इंजीनियरिंग साइंसेज और टेक्नोलॉजी के शोबों में तालीम की फराहमी में इदारे के किरदार और कामयाबियों से आगाह किया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नाहयान इंतकाल कर गए हैं। वो गुज़श्ता 7 साल से बीमार थे। पाकिस्तान में भी 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया है। कौमी क़यादत ने शेख खलीफा बिन जैद अल नाहयान के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। तफसीलात बताएंगी नमरा सुहेल। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नाहयान की उम्र 73 साल थी। शेख खलीफा 2004 से मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर थे, लेकिन गुज़श्ता 7 साल से अलालत के बायस इनका किरदार बड़ी हद तक रस्मी ही रहा। जहान फानी से कूच कर जाने वाले अमाराती सदर के इंतकाल पर 40 दिन के सरकारी सोग का ऐलान किया गया है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख खलीफा बिन जैद अल नाहयान की वफात पर गहरे रंज व गम और अफसोस का इजहार
اظہار کیا ہے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات سے متحدہ عرب امارات ایک بصیرت افروز قائد اور پاکستان اپنے ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا ہے۔ انہوں نے شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر UAE کی حکومت اور عوام سے تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ غم کی اس گھڑی میں پاکستان UAE کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے شاہی خاندان اور متحدہ عرب امارات کی عوام کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے بھی UAE کے صدر کے انتقال پر اظہار تعزیت کرتے ہوئے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان نے اپنے ملک کے عوام کے لیے باوقار زندگی کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان عالم اسلام میں ایک مضبوط آواز رکھتے تھے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے متحدہ عرب امارات کے صدر کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر متحدہ عرب امارات کے عوام اور شاہی خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال سے خطہ عرب ایک غیر معمولی حکمران سے محروم ہو گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی UAE کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ DG ISPR کے ٹویٹ کے مطابق آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ایک عظیم دوست سے محروم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوگوار خاندان کو ناقابل تلافی نقصان برداشت کرنے کی ہمت دے۔ DG ISPR نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ پاک فوج کے تمام رینکس نے بھی UAE کے صدر کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی متحدہ عرب امارات کے صدر کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان پاکستان کے عظیم دوست تھے۔ آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کے انتقال پر غمزدہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان کی وفات پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ UAE کے صدر کی وفات سے پاکستان اپنے بہترین دوست سے محروم ہو گیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں مریم نواز نے کہا کہ شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان پاکستان کے ساتھ ہر مشکل کی گھڑی میں کھڑے رہے۔ نمرہ سہیل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی اور ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جمہوریت کا تسلسل اور آئین کی بالادستی ناگزیر ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ناظرین، قومی اسمبلی کو بتایا گیا ہے کہ پاکستان ایک طریقہ کار سے پیٹرولیم مصنوعات خریدتا ہے اور روس کے ساتھ پیٹرولیم مصنوعات کا کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا۔ اجلاس کی تفصیل جانتے ہیں نمود مسلم سے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کی صدارت میں ہوا۔ وقفہ سوالات میں توانائی اور پیٹرولیم کے بارے میں وزیر مملکت مصدق مسعود ملک نے بتایا کہ روس سے پیٹرولیم مصنوعات کی رعایتی نرخوں پر درآمد کے حوالے سے کوئی معاہدہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس حوالے سے تفصیلی معلومات حاصل کر کے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ میرے سامنے کوئی کانٹریکٹ نہیں آیا روس کے ساتھ جس میں ہمیں کنسیشنز کے اوپر تیل جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے یا کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا ایک طریقہ کار ہے تیل خریدنے کا، اس طریقہ کار میں جہاں سے بھی سستا تیل مل رہا ہو وہ PSO کے اندر بڈ ہوتا ہے اور وہاں سے خریدا جاتا ہے۔ ہم G2G کر سکتے ہیں روس کے ساتھ، لیکن میری نظر میں کوئی ایسا کانٹریکٹ نہیں آیا۔ ایک سوال پر مصدق ملک نے کہا کہ LPG کی قیمتوں کا تعین سعودی عرب کی کمپنی ارامکو کی جانب سے اعلان کردہ قیمت اور ڈالر کی قدر کو مد نظر رکھ کر کیا جاتا ہے۔ پارلیمانی امور کے وزیر مرتضی جاوید عباسی نے کہا کہ ملک میں کتنی ماڈل کورٹس کام کر رہی ہیں اور ڈیمز فنڈز کے استعمال کے بارے میں کوشش کی گئی ہے کہ اس حوالے سے معلومات ملے، لیکن ابھی تک معلومات نہیں مل پائی، جس پر ڈپٹی اسپیکر نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے بات کی جائے، اگر قانونی طور پر اس حوالے سے معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں تو ایوان کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے۔ GDA کی سائرہ بانو کی جانب سے نشاندہی پر کورم پورا نہ ہونے پر قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ نمود مسلم، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ FIA منی لانڈرنگ کیس سے متعلق میڈیا پر چلنے والی خبروں میں حقیقت نہیں۔ وزیر اعظم کا یہ پیغام ہے کہ چاہے جتنے بھی جھوٹے مقدمے ہوں وہ ان کا قانونی طور پر دفاع کریں گے اور میرٹ پر سرخرو ہوں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر قانون نے کہا کہ ان کی پہلی اور آخری جماعت کالا کوٹ ہے۔ کل بڑی خبر گردش کر رہی تھی، آج میڈیا کے دوست بھی ہیں، کہ جی
میاں شہباز شریف صاحب کے خلاف جو مقدمہ قائم کیا FIA نے، میں اس مقدمے کے میرٹس پہ آج بات نہیں کروں گا، یہ عدالت میں اس وقت پینڈنگ ہے، اور ہمیں امید ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اب پوری غیر جانبدار اور آزادی کے ساتھ ہر طرح کے مقدمات کے فیصلے کر رہی ہے انشاءاللہ العزیز۔ اس میں خبر چھوڑی گئی کہ جی پروسیکیوٹر کو کہا گیا کہ یہ مقدمہ واپس لیا جائے اور ان کو فارغ کیا جائے۔ وزیر اعظم صاحب نے مجھے کل خصوصی طور پہ ہدایت کی کہ ان کی لیگل ٹیم تک یہ پیغام پہنچائیں کہ وزیر اعظم صاحب کا یہ پہلے دن سے ان کا یہ اپنا موقف ہے کہ چاہے جتنے بھی جھوٹے ہوں مقدمے، اور آج وہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کیسز کا عدالتوں میں قانونی طریقے سے دفاع کریں گے اور انشاءاللہ العزیز میرٹس پہ سرخرو ہوں گے انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون اور دوسرے مقررین نے کہا کہ آئینی بحران ختم کرنے کے لیے عدلیہ کا کردار قابل تحسین ہے۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے لاہور ہائی کورٹ بار کو 2 کروڑ گرانٹ کا چیک بھی دیا۔ اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے پاکستان میں تعینات سوئٹزرلینڈ کے سفیر نے ملاقات کی۔ سوئس سفیر نے بلاول بھٹو کو وزیر خارجہ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد پیش کی۔ اس موقع پر وزیر خارجہ نے سوئس سفیر کی دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا کرنے کی کوششوں کی تعریف کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سوئٹزرلینڈ پاکستان میں پہلے 10 سرمایہ کار ممالک میں شامل ہے۔ پاکستان میں مزید سوئس کمپنیز کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے خوش آمدید کہیں گے۔ یورپی یونین کے افغان امور کے بارے خصوصی ایلچی ٹامس نکلسن نے وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال پر خدشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے افغانستان میں استحکام کو مضبوط بنانے کے لیے بین الاقوامی رابطہ کاری کی اہمیت پر زور دیا۔ کچھ بات کرتے ہیں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کی، جہاں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ کارروائیوں کے دوران مزید 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے ان نوجوانوں کو ضلع بانڈی پورہ کے علاقے برارارا گام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں مقبوضہ علاقے میں نام نہاد حد بندی کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس علاقے میں راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کے ہندوتوا ایجنڈے کو مسلط کرنے کے فسطائی مودی حکومت کے مذموم منصوبے کا حصہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حد بندی کی مشق کا مقصد مسلم اکثریت کی انتخابی طاقت کو مصنوعی طور پر تبدیل کرنا، مسلمانوں کو مذہبی پسماندہ، حق رائے دہی سے محروم اور بے اختیار کرنا اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سیاسی اور انتخابی مقاصد کو آگے بڑھانا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے نئی دہلی کی عدالت میں مقبوضہ کشمیر جماعت اسلامی کی 4 ارکان کے خلاف ایک جھوٹے مقدمے میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ بھارتی حکام نے کشمیر یونیورسٹی کے پروفیسر سمیت مزید 3 کشمیری سرکاری ملازمین کو حق خود ارادیت کی تحریک کی حمایت کے الزام میں ملازمت سے برطرف کر دیا ہے۔ حریت رہنماؤں شبیر احمد ڈار اور یاسمین راجہ نے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے نظر بند چیئرمین محمد یاسین ملک کے اہل خانہ سے سری نگر میں ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے یاسین ملک اور دیگر حریت رہنماؤں کے عزم و ہمت کی تعریف کی، جنہیں جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کی مخالفت کی پاداش میں غیر قانونی نظر بندی کا سامنا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صدر عمر عبداللہ نے کہا کہ مقبوضہ وادی میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں۔ جب تک حالات معمول پر نہیں آتے اس وقت تک سیاحتی سرگرمیاں نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، مادر وطن کی حفاظت پر معمور بلند عزائم رکھنے والی پاک فوج ہمارا سرمایہ افتخار ہے، جس نے ہر محاذ پر ڈٹ کر قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کوئٹہ سمیت بلوچستان کے دیگر اضلاع میں ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں سرفراز شیخ۔ کوئٹہ میں دفاع وطن کے لیے عظیم قربانیوں کے اعتراف میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے اور اظہار یکجہتی کے لیے مسیحی برادری کی جانب سے شاندار ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ صوبائی وزیر اقلیتی امور و انسانی حقوق خلیل جارج بھٹو نے ریلی کی قیادت کی۔ ریلی میں شریک مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم لہراتے ہوئے وطن سے محبت کا اظہار کیا اور پاک فوج کے لیے تہنیتی نعرے بلند کیے۔ ہم پاک افواج کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں تاکہ کوئی بھی ایسا اقدام نہ کرے جس کی وجہ سے پاکستان بدنام ہو۔ انٹرنیشنل میڈیا میں
पाक फौज अदलिया हमारे अदारे हैं, हम इनके दफा के लिए निकलेंगे। हम यकजहती का इजहार करना चाहते हैं पाक फौज के साथ, और एज अ कम्युनिटी हम पाक फौज के साथ खड़े हैं। रैली के इख्तिताम पर शुरका ने पाक फौज के शुहदा और गाजियों की कुर्बानियों को सलाम पेश किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जानिब से जिला दुक्की और संजावी में भी पाक आर्मी की हिमायत में बड़ी अवामी रैली निकाली गई। शुरका ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मार्च किया और क़याम अमन के लिए कौम के बहादुर बेटों की बुलंद हिम्मती को सराहा। इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ देने वाली पाक फौज पूरी कौम का फख्र है। आज पूरी कौम मुत्तहिद होकर पाक फौज को मोहब्बत और इत्तेहाद का पैगाम दे रही है। सरफराज शेख, PTV न्यूज़, कोयटा। नाज़रीन, मौसम की बदलती रुतों में आपको अपडेट करेंगे कि मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर जारी है। इसी हवाले से रिजवान आरिफ की रिपोर्ट देखिए। हीट वेव की वजह से पंजाब, इस्लामाबाद, KPK, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन का दर्जा हरारत मामूल से 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है। गर्मी तो बहुत ज्यादा है इन दिनों में, तो मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि घर से निकलें भी तो कपड़ा वगैरह सर पे डाल के, सर को ढांप करके फिर निकल। पानी वगैरह का या शरबत वगैरह, फालसा, इस तरह के शरबत वगैरह का इस्तेमाल करें, नींबू पानी, ताकि गर्मी से बचा जाए। तिबी माहिरीन का कहना है कि शहरी खुद को हीट वेव से बचाएं। गैर ज़रूरी अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर ज़रूरत के वक्त आप घरों से बाहर निकलते हैं तो अपने सरों को ढांप कर रखें। लाइट कलर्स के जो हैं वो कपड़े पहने, और इसके अलावा फल और सब्जी का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक खुश्क मौसम की वजह से दर्जा हरारत में इजाफा हो रहा है। अवाम गर्मी की लहर से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, अब बात करते हैं लाहौर की, जहां सूबे भर में शदीद गर्मी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफे का भी इम्कान है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे वसीम सज्जाद अपनी रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सूरज आज भी आग बरसाता रहा। गर्मी की शिद्दत से शहरियों की मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हुई। शहर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शदीद गर्मी के बायस स्कूल, कॉलेज, दफातर और कारोबारी मराकज़ को जाने वाले लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के वस्ती और जनूबी इलाकों में भी आइंदा हफ्ते तक गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो सकता है और पारा 45 डिग्री तक जा सकता है। PDMA की जानिब से तमाम मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को शदीद गर्मी के पेश नज़र गैर ज़रूरी बाहर निकलने और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की हैं। कोशिश करें कि इस मौसम में ज़्यादा बाहर ना निकलें। दूसरे, अपने पास एक छोटी तौलिया होती है या रुमाल है, वो गीला करके रखें। आप जिस सब मोटरसाइकिल पे अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप जो हेलमेट पहनते हैं, ज़ाहिर कि गर्मी भी है, तो उससे नीचे आप तौलिया रखें अपनी पानी से धो के, उसके ऊपर हेलमेट पहने, ताकि आपके सर पे ना हिद्दत इतनी ना आए और आपका जिस्म भी थोड़ा ठंडा रहे। उनका कहना है कि मौसम की शिद्दत के पेश नज़र पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जबकि घर से निकलते वक्त सर को ढांप कर रखें। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाके शदीद गर्मी के ज़ेर असर रहेंगे। ताहम मुल्क के वस्ती और जनूबी मैदानी अजला में गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने का इम्कान है। इस दौरान बारे खैबर पख्तूनख्वा, खित्ता पोटोहार और कश्मीर में चंद मकामात पर गर्द आलूद हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। जैकाबाबाद 50, सिब्बी, दादू, लाड़काना, खैरपुर 49, शहीद बेनज़ीराबाद, मिठी, सखर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, NDMA ने इस्लामाबाद में कौमी मानसून तैयारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें तमाम मुतालिका इदारों ने शिरकत की। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि मुल्क में माहौलियाती तब्दीलियों के मुज़र असरात मुरतब हो रहे हैं। कुदरती आफात और किसी भी नागहानी आफत से निमटने के लिए बरवक्त इक़दामात ज़रूरी हैं। उन्होंने पेश की और बरवक्त हंगामी इतला के निज़ाम, आम लोगों तक मालूमात की रसाई और इदारों के बरवक्त रिस्पॉन्स पर जोर दिया। और हसनाबाद ग्लेशियर से पानी के खराज और पुल टूटने की खबर से वादी हुंजा में सयाहों की आमद में कमी वाक़ई हो गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले सयाह मुतबादिल रास्ते के हवाले से क्या कहते हैं, देखते हैं हुंजा से इकराम नजमी की ये रिपोर्ट।
हमजा के सयाहती मुकाम करीमाबाद में मौजूद हूँ। हसनाबाद ग्लेशियर से पानी के अखराज और पुल के टूट जाने की खबर जब सोशल मीडिया और मीडिया पे चली, उसके बाद यहाँ पे टूरिज़म में वाज़ा कमी वाक़ा हुई है। हमारे साथ कुछ मेहमान यहाँ पे मौजूद है जो मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि जो अल्टरनेट रूट है या जो मुतबादिल रास्ता है, वहाँ से आते हुए उनको कोई मुश्किलात का सामना तो नहीं करना पड़ा। हुंजा का जो पुल टूटा हुआ है, काफ़ी आवाम नहीं आ रही, आप दूसरे रास्ते से आ सकते हैं और हम भी दूसरे रास्ते से आए हैं और बिल्कुल इजी रास्ता है। यहाँ पे आवाम डरी हुई है कि यहाँ पे नहीं जाना, कोई मसले हैं, कोई मसला नहीं है, बिल्कुल क्लियर रास्ते हैं। और यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, आराम से आए हैं, या रास्ते खुले हुए हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम सब। मुल्क के दीगर हिस्सों से जो मेहमान यहाँ पे आए हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे जो उन्होंने सफ़र तय करके आए हैं, जिस मुतबादिल रास्ते से वो हुंजा तक पहुँचे हैं, उस रास्ते में उनके लिए कोई दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ा है। और इसके अलावा जो रूट उन्होंने शाहराह नगर का इस्तेमाल की हैं, वो भी दिलफरेब नज़ारों से भरपूर रूट है और लोग यहाँ पे आके इंजॉय कर सकते हैं। नाज़रीन, मुशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेंगे। गिलगित में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत ने माजी में भी गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की पर तवज्जो मरकूज़ की। शेरफर ग्लेशियर और मुतासरीन रोंदू की आबादकारी के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम करेगी। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इलाके की तामीर और तरक्की के लिए सरकारी शोबे के तरक्याती प्रोग्राम के तहत तमाम मनसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाया जाएगा। सोर्स बॉर्डर पर चीन के साथ तिजारत की बहाली के लिए भी इक़दाम करेंगे। बैंकों के जरिए सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें जमा कराने का अमल मुकम्मल हो गया है। कुरानंदाजी इतवार को होगी। वजारत मज़हबी उमूर के मुताबिक बैंक के जरिए 57,593 दरखास्तें जमा हुई हैं। कल जमातों की एंट्री के बाद जांच पड़ताल का अमल मुकम्मल होगा। वक्त की कमी के बायस हज दरखास्तों की वसूली में तौसी नहीं की गई। दरखास्त गुजारों को वजारत की जानिब से तस्दीकी पैगामात भेजे जा चुके हैं। आज़मीन वजारत की वेबसाइट से भी अपने कवाइफ की तस्दीक कर सकते हैं। आज़मीन हज की सहूलत के लिए रोड टू मक्का इक़दाम के तहत किए गए इंतजामात के सिलसिले में सऊदी वफ़द ने AIAP लाहौर का दौरा किया। रोड टू मक्का सऊदी वज़ारत ख़ारजा का एक अहसन इक़दाम है। पाकिस्तान के अलावा मलेशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और ट्यूनिस के आज़मीन हज के लिए इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। इक़दाम का मकसद आज़मीन को हज वीज़ा देकर सफ़र में आसानी पैदा करना है। हुज्जाज के फिंगरप्रिंट्स लेकर रवानगी के वक्त पासपोर्ट पर मोहरें लगाई जाती हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ कहते हैं कि इमरान खान कौमी सलामती के लिए एक बड़ा खतरा है। जो शख्स पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस में इजाफा करने का बाइस बना हो, वो मुल्क का खैर खा कैसे हो सकता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि इमरान खान और PTI का मकसद पाकिस्तान के इदारों को कमज़ोर करना है। वो इदारों को ब्लैकमेल करके दोबारा इक़्तिदार हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का तरक्याती इदारा पाकिस्तान में पायदार तरक्की के हिस्सों के लिए मुख्तलिफ शोबों में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के रेजिडेंट नुमाइंदे ने इस्लामाबाद में वज़ीर ममलकत ख़जाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा से मुलाकात में बताया कि ये रकम आइंदा 3 साल में सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट समेत मुख्तलिफ तरक्याती शोबों पर खर्च की जाएगी। डॉक्टर आयशा गौस पाशा ने पायदार तरक्याती अहदाफ के हसूल में शराकतदार के तौर पर UNDP के किरदार को सराहा। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की बेहतरी और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने तरक्याती शोबों में निजी सरमायाकारी से इस्तेफादा के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल से पाकिस्तान में आलमी इदारे सेहत के सरबराह डॉक्टर फिल्था माही पाला ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में सेहत के शोबे में 2 तरफा उमूर समेत कोरोना वायरस और पोलियो की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया गया। वज़ीर सेहत ने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना वबा की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है और इस हवाले से सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। डॉक्टर फिल्था माही पाला ने कहा कि उनका इदारा सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगा। उन्होंने मौजूदा हुकूमत के पोलियो के खात्मे के बारे में इक़दामात को भी सराहा। वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री के वफ़द ने कराची में मुलाकात की और मुलाकात में सेल्स टैक्स और गैस सप्लाई समेत कपड़े की सनत से मुताल्लिक गौर हुआ। वज़ीर तिजारत ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर कौमी मईशत का अहम शोबा है। इसके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गैस के मसले को जल्द हल कर लिया जाएगा।
नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया है। तर्जमान पाक बहरिया के मुताबिक अपने दौरे में उन्होंने सिडनी में इंडो पैसिफिक सी पाक कॉन्फ्रेंस का शिरकत की। कॉन्फ्रेंस का मकसद बहरी तहफ़्फ़ुज़ और समंदरी माहौलियाती निज़ाम के हवाले से मुश्तरका काविशों की अहमियत को उजागर करना था। नेवल चीफ ने कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के बहरी सरबराहान से मुलाकातों में आलमी सतह पर समंदरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए दो तरफ़ा ताउन पर गुफ्तगू की। और बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात 29 मई को हो रहे हैं। कोयटा और लसपेला में इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान बाद में होगा। वकार अहमद तफसील बताएंगे। बल्दियाती इंतखाबात का मार्का सजने को है तैयार। बलूचिस्तान में तवील इंतजार के बाद 29 मई को लोकल बॉडीज के इंतखाबात हो रहे हैं। लोकल बॉडीज की सतह पर अवाम की नुमाइंदगी के लिए 23,000 से जायद उम्मीदवार मुकाबले पर हैं। बल्दियाती इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान में कुल वार्ड्स हैं 6,259, अर्बन वार्ड्स हैं 914, जबकि देही इलाकों के वार्ड्स की तादाद 5,345 है। रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 50,59,374, जिनमें मर्द वोटर्स 28,82,247 और खवातीन वोटर्स 21,77,127 हैं। ग्रास रूट लेवल पे जो बात है, जब आप उसको इख्तियारात को वहाँ तक पहुँचाते हैं तो फिर ये होता है कि जो काउंसलर होता है, काउंसलर का हल्का बहुत छोटा और उसको वो सब एक दूसरे को जानते हैं, तो उसमें मसाइल को हल करने में बड़ी मदद मिलती है। सड़क बनाना, नाली बनाना और ये सारी चीज़ें जो है, छोटी छोटी चीज़ें, ये लेजिस्लेशन असेंबली के मेंबर का काम नहीं है। बल्दियाती इलेक्शन के लिए 718 वार्ड्स पर मुश्तमिल 54 म्यूनिसिपल कमेटियां बनाई गई हैं। देही इलाकों की 978 यूनियन काउंसिल्स 5,933 वार्ड्स पर मुश्तमिल हैं। वकार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा। और कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, जदीद सफरी सहूलतों से आरास्ता अब्दुल सत्तार ईदी ऑरेंज लाइन बसों की खेप कराची पोर्ट पहुंच गई है। शहरियों को मयारी सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। अवामी मंसूबे की तफसील मोहम्मद जुहेब से जानिए। शहर कायद के बासियों के लिए एक और खुशखबरी, आवाम को मिलेगा टूटी फूटी खटारा बसों से छुटकारा। शहरियों को फरसूदा और तबाहाल ट्रांसपोर्ट के अजाब से निकाल कर जदीद और बेहतर ट्रांसपोर्ट देने का सिंध हुकूमत का वादा तकमील के आखिरी मरहले में। खस्ता हाल और धुआं छोड़ती बसों से परेशान शहरी अनकरीब खूबसूरत एयर कंडीशन बस में आरामदेह सफर कर सकेंगे। कई दहाइयों से ट्रांसपोर्ट के मसाइल से दो चार शहरी ऑरेंज बसों की आमद से खुश नजर आते हैं। ऑरेंज बसें कराची पहुंच गई हैं, बहुत अच्छी बात है। हम गवर्नमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुझे तो बहुत खुशी है कि 50 बसें आ गई हैं और इससे हमें काफ़ी फ़ायदा होगा। ऑरेंज बसों की आमद कराची के लिए किसी खुशी से कम नहीं। ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट की कुशादा बसें औरंगी टाउन के आवाम को 3.8 किलोमीटर के रूट पर उम्दा और आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम करेंगी, जबकि ऑरेंज लाइन को बोर्ड ऑफिस जंक्शन पर ग्रीन लाइन मंसूबे से भी जोड़ा गया है। इस रूट पर 5 बस स्टेशन हैं, जबकि इस प्रोजेक्ट से रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 50,000 से ज़ायद शहरी मुस्तफीद हो सकेंगे। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये गाड़ी चल जाए, सुकून हो जाएगा लोगों को। औरंगी टाउन से जो यहाँ पर आते हैं बोड़ाबिस तक, बोड़ाबिस के लिए जो कैरियर लेंगे आगे ग्रीन लाइन के, उन लोगों के लिए सहूलत हो जाएगी। बहुत सहूलत हो जाएगी आवाम को, क्योंकि पूरा औरंगी टाउन फ़ायदा उठाएगा इससे। ये अगर जल्द से जल्द मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा तो हुकूमत का हम शुक्रगुजार हो जाएंगे। ये चालू हो जाता है आवाम के लिए आसानी हो जाएगी। लोगों का कहना है कि ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट से रोजमर्रा पेश आने वाले ट्रैफिक के मसाइल हल हो जाएंगे और सफर में आसानियां पैदा हो जाएंगी। मोहम्मद जुहेब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और रावलपिंडी के इलाके कोटली सतिया के गांव पाना के जंगलात में लगी आग पर 20 घंटे बाद काबू पा लिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग सड़क के साथ जंगल की खाई में लगी। गर्मी की शिद्दत और तेज हवाओं के बाइस आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आग ने तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लगे जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचाया। रेस्क्यू 1122 और महकमे जंगलात के फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। नाज़रीन, लाहौर में आलमी मयार का किताब मेला जारी है, जहां कुतुबीनों के लिए 50% तक रियायती निर्खों पर मयारी किताबें दस्तयाब हैं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मेले का दौरा किया और इल्म के फरोग के लिए इस इक़दाम को सराहा। वर्दा सलीम की रिपोर्ट देखिए। लाहौर हमेशा से ही इल्म अदब और इल्मी इशाज का गहवारा रहा है। इस शहर से वाबस्ता लिखारियों, कलमकारों ने दुनिया भर में अपनी तहरीरों से पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। एक्सपो सेंटर लाहौर में जारी बैनुल-अक़वामी म्यार का किताब मेला इस शहर बेमिसाल का सालाना इवेंट बन चुका है। 4 रोजा किताब मेले में 70 से ज़ायद इशाती कंपनियों ने 185 स्टॉल्स लगाए हैं।
सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने किताब मेले का दौरा किया और इल्म के फरोग के लिए किताब मेले के इनेकाद को सराहा। उन्होंने किताबों के मुख्तलिफ स्टॉल्स देखे। किताब जो है वो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा ही खुशगवार और बड़ा ही मौसर एक ऐसा आला है जो आपकी जिंदगी के हर पहलू को मुतासर करता है। इल्म के मुतलाशी जोक दर जोक किताब मेले में आए और किताबों के इस बहरे बेकरार में मुतज़न होकर अपने लिए गोहरे नायाब चुनते रहे। जिसको किताब से मोहब्बत नहीं, मैं समझता हूँ कि उसकी कोई ज़िंदगी नहीं। किताबों को पढ़ते हैं और इल्म की कदर करते हैं, वो लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं और आ भी रहे हैं। आजकल जैसे हमारे बच्चे आपने देखा है कि डिजिटल्स होते जा रहे हैं, बुक से दूर होते जा रहे हैं, प्रिंटिंग मीडिया से दूर होते जा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि ये बुक फेयर होना चाहिए। आज के दौर में किताब के साथ तालिब इल्म का ही और सोसाइटी का भी रिश्ता कमज़ोरतर होता जा रहा है। ज़रूरत इस बात की है कि हम इस तरह के इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ करें और इस रिश्ते को बहाल करें। किताब मेले में जहां मुख्तलिफ अलूम और शोबों के म्यारी कुतब मौजूद हैं, वहीं ये इल्म का खजाना मार्केट से 50% तक रायत में भी दस्तयाब है। इंटरनेशनल बुक फेयर मेले के इनेकाद का मकसद शहरियों को किताबों की अहमियत से रूशनास करवाना है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर।